الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو اس مطلب میں ہے کہ اگر معاطات کرنے والے متعاطیین ان کے قصد کے اعتبار سے معاطات کا عنوان فرق کرے گا، کبھی بے کہلائے گا، کبھی بے نہیں کہلائے گا، بلکہ ایک مستقل معاملہ کہلائے گا۔ کبھی ان کے قصد کی بنیاد پر صرف تصرف کا حق حاصل ہوگا، کبھی ان کے قصد کی بنیاد پر ملکیت حاصل ہوگی۔ اس سلسلے میں ہم دوسرے مرحلے میں پہنچے ہیں، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے، پہلا مرحلہ یہ تھا کہ دونوں نے قصد کیا ہے اعطاء کا، دونوں کی طرف سے اعطاء کا قصد ہے، علیکم السلام، اور ان دونوں کے قصد سے دو مال ایک دوسرے کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ اس میں بہت اس مطلب پہ دقت کی ضرورت ہے۔ دونوں کا قصد کیا ہے؟ دونوں کا قصد ہے اعطاء کا، یعنی مال دونوں طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ چونکہ مال منتقل ہو رہے ہیں دونوں طرف، لہٰذا یہ واقعی بے کی طرح سے ہے، بے بالصیغہ کی طرح سے ہے، اور جب ایک شخص اعطاء کرے گا اور طرف مقابل اس کو قبول کر لے گا تو معاطات لفظاً بھلے ہی واقع نہ ہو، عملاً معاطات ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے شخص کو جو اس نے قبول کیا ہے مجاناً قبول نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے بدل میں اسے دینا ہے۔ تو اعطاء طرفینی ضرور ہے، مگر اعطاء اول انشاء تملیک ہے، اور اعطاء ثانی ما التزم بہی، اس عوض کو اسے پلٹانا ہے بس۔ اور ایک عنوان اور جو بیان میں پتہ نہیں میں نے ذکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ بے ہے باقاعدہ سے، معاطات بے لفظی نہیں ہے لیکن بے ہے مکمل طریقے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف ثمن ہے، دوسری طرف مسمن ہے، اور دونوں اعطاء کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اعطاء واحد سے ہی انشاء تملیک ہو جاتا ہے اور مقابل میں اسے دینا پڑتا ہے، لہٰذا یہ بے ہے۔ آج جو پڑھنے جا رہے ہیں، اچھا پھر اس کے بعد اس میں یہ گفتگو تھی، یہ اعطاء طرفینی ہے اور ایک ہی اعطاء سے بے واقع ہو جاتا ہے، اور دوسرا والا جو دے رہا ہے وہ اپنے اوپر جو ذمہ داری آئی ہے اس کو عطا کر رہا ہے۔ تو ہم نے یہیں پہ یہ کہا تھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا، تو بیان کیا گیا تھا اس کا ثمرہ معاملہ ہو جانے کے بعد، ایک طرف سے اعطاء ہو جانے کے بعد اگر دوسرا والا شخص اعطاء کرنے سے پہلے مر جائے تو یہ معاملہ کیا ہے؟ چونکہ مکمل طریقے سے بے واقع ہو چکا ہے، لہٰذا علیکم السلام دوسری طرف سے دینا اس کے ورثہ کی، یرحمکم اللہ، اس کے ورثہ کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ نتیجہ، یہ ثمرہ ہم نے پہلے میں بیان کیا تھا۔ کیا کیا بیان کیا؟ ایک تو یہ بے ہے اعطاء طرفینی والا، قصد تملیک کے ساتھ اعطاء طرفینی کرنا، یہ ایک تو بے ہے۔ دو، مال مقابل میں مال کے ادھر ادھر ہو رہا ہے، صحیح ہے؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ایک طرف سے اعطاء کے بعد معاملہ پختہ ہو جانے کی بنا پہ ثمرہ ظاہر ہوگا کہ اگر ثانی انسان کسی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا، جیل میں چلا گیا، معاملہ اگر اس کو مکمل ہونا ہے تو مکمل ہو چکا ہے، صرف اس کے ورثہ کو اگر وہ مر جائے تو ذمہ داری ہے کہ جو لیا گیا ہے اس کے بدل میں دیں، یا اگر زندان میں چلا گیا ہے تو اس کا اگر جو پراپرٹی ہے اس کے حساب اس میں سے نکال کے دیا جائے گا۔ چونکہ ایک طرف سے اخذ ہو چکا ہے، یعنی ایک طرف سے عطا ہو چکا ہے، اس کی طرف سے اخذ ہو چکا ہے، معاملہ پختہ ہو چکا ہے۔ لیکن آج جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تملیک مقابل تملیک ہے۔ دونوں نے قصد کیا ہے اعطاء کرنے میں تملیک کرنا، نہ مال کو ادھر ادھر کرنا، مال کو ملکیت میں نہیں دے رہے ہیں، مال کی ملکیت کو، یعنی فعل کی بات ہو رہی ہے۔
ایک فعل انجام پا رہا ہے اور اس فعل کے مقابل میں دوسرا فعل. توجہ کریں. ثانی ہے ما، ان وجوہ اربعہ وہ 4 صورتیں جو تصور کی گئی ہیں کس میں؟ جب اعطاء طرفینی ہو تو اس میں ان یقصد کل منہما تملیک الآخر، ہر دو دوسرے کو مال نہیں دے رہے ہیں، مال کی ملکیت کو مقابل میں قصد کر رہے ہیں. میں دے رہا ہوں اپنے کتاب کو اس اعتبار سے میں زید کی تملیک کر رہا ہوں کہ وہ بھی مجھے تملیک کرے. کیا چیز؟ وہ چیز وہ جو بھی ہو، تملیک کا قصد کریں دونوں. ان یقصد کل منہما تملیک الآخر مالہ، اپنے مال کو تملیک کرے ایک دوسرے کے، بے ازائے مال ہی نہیں، بے ازائے تملیک مال ہی کیا ہو، اس مقابل میں کہ وہ بھی مجھے اپنے مال کی ملکیت مجھے عطا کرے گا. ایک مرتبہ مال کو مقابل میں مال کے رکھا ہے، ایک مرتبہ مال کو نہیں بلکہ ملکیت مال کو، تملیک مال کو مقابل میں تملیک مال کے رکھا ہے. تو یہاں پہ جو مقابلہ ہو رہا ہے مال کا مال کے مقابل میں نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک عمل، ایک کیا نام ہے، عنوان آ رہا ہے وہ تملیک کا. اسی لیے کہہ رہے ہیں فَيَكُونُ تَمْلِيكٌ بِإِزَاءِ تملیک. یہاں پہ تملیک ہے، تملیک مال ہے، تملیک عین ہے، مقابل میں تملیک عین کے، یعنی مال کے مقابل میں مال ضمناً ہے، سامنے فرنٹ پہ کیا ہے؟ تملیک مال مقابل تملیک مال. فَالْمُقَابِلَةُ بَيْنَ التَّمْلِيكَيْنِ، یہاں پہ موتی اول جو دے رہا ہے وہ اپنے مال کو تملیک کر رہا ہے اور اس سے چاہ کیا رہا ہے کہ وہ موتی ثانی بھی مجھے اپنے مال کو تملیک کرے. تو تملیک کے مقابل میں تملیک آ رہی ہے لل ملکین، آپ لل مالین بھی کہہ سکتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کے مقابل میں ملک ہے یا مال ہے یا عین کہہ لیجئے، دونوں کے مقابل میں عین نہیں ہے. حالانکہ توجہ کریں، حالانکہ تملیک مال بھی وہی مال ہے، تملیک عین بھی وہی عین ہے، لیکن عنوان کیا ہے؟ تملیک کا ہے، مال کا نہیں ہے، ملکیت کا نہیں ہے. کہنے فَالْمُقَابِلَةُ بَيْنَ التَّمْلِيكَيْنِ، موتی اول نے تملیک کیا ہے، موتی ثانی بھی تملیک کر رہا ہے، لل ملکین، ملک نہیں ہے ملک کے مقابل میں. واضح ہے. وَالْمُعَامِلَةُ مُتَقَوِّمَةٌ بِالْعَطَاءِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، اور یہ جو معاملہ ہے اس کے 2 رکن ہیں. ایک رکن اعطاء موتی اول، دوسرے اعطاء موتی ثانی. یعنی اس معاملے کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ اعطاء طرفینی پہ ہے. پہلے کیا تھا؟ ایک طرف سے اعطاء کیا، دوسرے نے اخذ کر لیا، یہ کیا ہے؟ معاملہ ہو گیا. یہاں سے اعطاء ہوا، ادھر سے اس نے اخذ کر لیا، معاملہ پختہ ہو گیا ہے. اب جیسے اگر اس نے سمن دیا تو اسے مسمن ملنا چاہیے، اور اگر مسمن دیا تو سمن ملنا چاہیے. یہ پہلی صورت تھی. دوسری صورت میں کیا ہے؟ نہیں، تملیک مقابل تملیک ہے، تملیک مال تملیک عین کہے، ملکیت مقابل ملکیت نہیں ہے، مال مقابل مال نہیں ہے، بلکہ مال کی تملیک عمل، اور ادھر سے بھی مال کی تملیک عمل ہے، ایک دوسرے کے مقابل میں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب تک اعطاء من الطرفین نہ ہو تب تک یہ معاملہ پختہ اور پکا نہیں ہوگا. پہلی صورت میں کیا تھا؟ ایک طرف سے اعطاء سے معاملہ پکا ہو گیا تھا. یہاں کیا کریں؟ نہیں، لازم ہے کہ یہاں پر یہ معاملہ چونکہ متقوم، اس کے 2 جیسے جنس اور فصل تعریف میں ہوتی ہے، دونوں ضروری ہوتی ہے، ویسے یہاں پہ بھی یہ معاملہ مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا، متقوم ہوگا. اس کے 2 ستون ہے، اعطاء طرفینی، دونوں طرف سے اعطاء ہو تب یہ معاملہ پختہ ہوگا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر ایک نے اعطاء کیا ابھی یہ معاملہ پختہ نہیں ہوا ہے، دوسرا جب تک اعطاء نہ کرے. واضح ہے. اب اگر یہ اعطاء پہلا موتی اول نے اعطاء کر دیا اور اس کی چاہت کیا ہے کہ دوسرا والا بھی اعطاء کرے، اور چونکہ یہ معاملہ 2 طرف کے اعطاء کے اوپر متقوم ہے، مضبوط ہے، پختہ ہوگا، لہٰذا اگر پہلا والا دے رہا ہے اور اس نے قبول کر لیا، دوسرا والا دینے سے پہلے مر گیا، تو
तो चूंकि तमलीक मुकाबिल में तमलीक के थी, मामला ही उसका दो उन्वान था, दोनों तरफ से तमलीक का था, मरने की वजह से ये मामला पुख्ता नहीं हुआ, फासिद हो जाएगा। अभी एक ही तरफ से एता हुआ है, दूसरी तरफ से एता नहीं हुआ, इसलिए कहने वल मुआमलतु मुतक़व्वमतुन बिल अताए मिनत तरफ़ैन, यहाँ पे तरफ़ैन की तरफ से तमलीक हो, दोनों की तरफ से एता हो, हालांकि तमलीक तो है ही है, एता हो। अब अगर फलौमा तस्सानी क़ब्ल दफ़, मोती अव्वल ने दिया, मोती सानी ने अभी दिया नहीं है, कबूल कर लिया है, मगर क्या चीज कबूल कर लिया है? तमलीक, इसके तमलीक अव्वल को कबूल किया है और उसे तमलीक करना है। माल मुकाबिल में माल के नहीं है कि एक के देने के बाद और कबूल करने के बाद मामला पुख्ता हो जाए। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर दूसरे ने दफ नहीं किया, मा तस्सानी क़ब्ल दफ, देने से पहले, उधर हमने क्या कहा? मुतक़व्वम बिल अताए मिनत तरफ़ैन होना चाहिए, दोनों तरफ से एता हो, तब मामला पुख्ता और मजबूत होगा ना। अब अगर एक ने नहीं दिया है और मर गया, लम यतहक़्क़क़ अल मुआतात, ये मुआतात मुहक्कक ही नहीं हुआ। क्या फर्क हुआ पहली सूरत से और दूसरी सूरत से? पहली सूरत में ये था एताए तरफ़ैनी जरूर है, मगर एक ही तरफ जब एता करे माल और दूसरा वाला कबूल कर ले, तो माल के मुकाबिल में माल है, इसके कबूल करने की वजह से मामला पुख्ता हो गया था। अभी यहाँ पे कस्द दोनों का क्या है? तमलीक है दोनों तरफ से। एक ने तमलीक किया, माल को दिया, तमलीक कर दिया जैद को, उसने अभी दिया नहीं है, तमलीक नहीं किया है, तो यहाँ पे गोया ऐसे ही है कि जैसे मैंने मामला करते हुए कहा कि बे तो हाजल किताब, उसने अभी कुछ बोला ही नहीं। अगर मामला लफ्जी बय व इश्तरा के जरिए से हो, बाये कहे बे तो का हाजल किताब, मैं तुम्हें ये किताब बेच रहा हूँ, जब तक वो कबिल तो नहीं कहेगा, तमल्लक तो नहीं कहेगा, मामला होगा नहीं होगा। वैसे यहाँ पे भी अगर तमलीक मुकाबिले तमलीक के हो तो दोनों तरफ से एता जरूरी है। अगर एक तरफ से एता हुआ है तो बिल्कुल क्या नाम है, अनकहतो या अनकहतो की तरह से है, कबिल तो नहीं आया है, बेतुका की तरह से है, उधर से कबिल तो नहीं आया, इस तरह से हो जाएगा। वहाजा बईदुन अन मअनल बय, और ये मुआमला जो तमलीक मुकाबिले तमलीक के है, ये मुआमला बय की सूरत से खारिज है। कैसे बय की सूरत है? क्योंकि बय में तारीफ में हमने क्या कहा था? मुबादले माल मुकाबिले माल के होना चाहिए। यहाँ पे माल नहीं है, माल की तमलीक अमल मुकाबिल में अमल के है, तो चूंकि ये बय की तारीफ से खारिज है, लिहाजा अगर मुताआतियन एता तरफ़ैनी करने वाले तमलीक की नियत करें, दोनों अपने माल को तमलीक मुकाबले में तमलीक के करें, तो ये बय नहीं, बय से खारिज है। वहाजा बईदुन अन मानल बय, पहली बात तो ये कि माना ये बय से खारिज है, क्योंकि बय की तारीफ में हमने क्या कहा है? माल मुकाबले माल होना चाहिए, और यहाँ पे माल की तमलीक मुकाबिल में माल की तमलीक के है, अमल मुकाबिल में अमल के है, माल मुकाबिल में ऐन माल के नहीं है, ऐन मुकाबिले ऐन नहीं। ये एक बात। माल नहीं दिया, माल नहीं दिया, माल दिया है, मगर माल देना, माल को मौजू नहीं करा दिया, माल की मिल्कियत अमल। तवज्जो करें क्या फर्क है पहली सूरत से दूसरी सूरत में? आपने मोबाइल दिया, मैंने जो है आपको किताब दी, ये माल मुकाबिल में माल के आए ना। अगर मैंने आपको माल दिया, मसलन मोबाइल दिया, और आप उसके आपने अख्ज़ कर लिया, ये मामला हो गया। अब आपकी जिम्मेदारी है कल जो है पैसा पहुंचाएं, 2 दिन के 10 दिन के बाद पहुंचाएं, ये मामला हो चुका है ना। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहने, दूसरी सूरत में ये कहने कि माल की तमलीक मुकाबिल में माल की तमलीक की हो। अब अगर मैं मसलन मोबाइल को आपको दे रहा हूँ, ये कह के कि मैं आपकी मिल्कियत बना रहा हूँ, तो अब आप जब तक अपनी किताब की मिल्कियत मेरी नहीं बनाएंगे, तब तक मामला पूरा नहीं होगा। वाज़ेह हुई बात। इसलिए अगर एक तरफ से एता हुआ, इस एता में क्या है? नियत तमलीक का है। तरफ मुकाबिल जब तक तमलीक नहीं करेगा, तब तक वो मामला पूरा नहीं होगा। अब कहने की ये तमलीक मुकाबिल में तमलीक के जो आया है, जिम्नन, तवज्जो, जिम्नन माल ही मुंतकिल हो रहा है, मगर अमल क्या है? तमलीक का अमल है, फेल है। तो कहने की ये
जो तमलीक मुकाबिले तमलीक है, बै की तारीफ से खारिज है। बै में माल मुकाबिले माल के था, यहाँ पे तमलीक माल मुकाबिले तमलीक माल की नीयत की जा रही है। लिहाजा ये मुआतात, तवज्जो, ये मुआतात बै की तारीफ से खारिज है, बै इसे नहीं कहेंगे। फिर इसे क्या कहेंगे? इसके लिए पहली बात, पहला मरहला ये बै नहीं है, क्योंकि बै की तारीफ में क्या था? माल मुकाबिले माल होना चाहिए। 3 अदद उन्वान बै की नफी करने के बाद जनाब शेख अंसारी इस एताए तरफैनी में, मैं बहुत बार बार कह रहा हूँ, एताए तरफैनी में कसद तमलीक दोनों तरफ से हो, इस एताए तरफैनी को क्या नाम दिया जाए? बै तो नहीं है, क्योंकि माल मुकाबिले माल नहीं है, बल्कि तमलीक माल मुकाबिले तमलीक माल है। क्या नाम दिया जाए? नंबर 1, या तो ये हिबे मुअव्वज़ा के मानिंद है, शबीह कह रहे हैं, आइनन हिबे मुअव्वज़ा नहीं कह रहे हैं, या ये मुसालिहत है, मुसालिह मुआताती, या ये उन मुआमले मुस्तकिल है। तवज्जो करें, दूसरी किस्म जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है, एता ए तरफैनी कसद तमलीक के साथ दोनों तरफ से हो। मैं दे रहा हूं आपको अपनी किताब की मिल्कियत आपको बना रहा हूं, आप अपनी घड़ी की मिल्कियत मुझे बनाए। इस मिल्कियत के मुकाबिल में मिल्कियत माल के मुकाबिल में माल नहीं है, ज़िम्नन माल दे रहे हैं, लेकिन हकीकतन सामने क्या है? तमलीक किताब, तमलीक घड़ी कर रहे हैं। इस मुआतात को जनाब शेख अंसारी साहब कह रहे हैं कि ये बईद है, दूर है, नहीं है। क्या? बै नहीं है। वाज़ेह है। तो पहली बात यह कि वहाज़ा बईदुन अन मानल बै, माना ये बै से दूर है, लिहाजा इसके ऊपर हुक्म बै नहीं आएगा। तो क्या उन्वान देंगे इस मुआतात को? जवाब, करीबुन इलल हिबतिल मुअव्वज़ा, ये हिबे मुअव्वज़ा के मानिंद है, से करीब है, शबीह हिबे मुअव्वज़ा है। हिबे मुअव्वज़ा किसे कहते हैं? मसलन मैं आपको अपना मोबाइल या अपनी किताब दे रहा हूं, आपसे चाह रहा हूं आप मुझे अपनी घड़ी दे दें, लेकिन यहाँ पे ये नहीं, लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें, बस हाला लफ्ज इस्तेमाल करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि मैं आपको हदिया जो दे रहा हूँ ये मुफ्त में नहीं दे रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि आप भी मुझे कोई चीज अपनी दें। तो यहाँ पे मैं जो आपको किताब या कोई चीज दे रहा हूँ, ये क्या है? मज्जानन दे रहा हूँ, चाह ये रहा हूं कि आप मुकाबिल में मुझे कोई चीज दें। दूसरा वाला भी अगर आपको वो मुझे कोई चीज दे रहा है, वो भी मज्जानन नहीं दे रहा, मुकाबिल में कोई चीज दे रहा है। तो यहाँ पे हिबे मुअव्वज़ा में क्या है? तवज्जो रहे, हिबे मुअव्वज़ा में मैं दे रहा हूं मगर एवज उसका चाह रहा हूं, मिल्कियत की बात नहीं रहे, एवज चाह रहा हूं। तो देना मेरा मुफ्त में है, लेकिन एवज चाह रहा हूं, यानी मिल्कियत बना रहा हूं आपकी। अगर आपने मुकाबिल में मुझे कुछ ना दिया, तवज्जो करें इस नुक्ते पर, अगर मैं आपको अपनी किताब दे रहा हूं, हिबा कर रहा हूं और आपसे चाह रहा हूं आप भी कुछ मुझे दें, अगर आपने मुझे कुछ ना दिया तो ये हिबा क्या हो जाएगा? हिबा बातिल नहीं हो जाएगा। मैं चाहूं तो सुकूत अख्तियार करूं, भाई मैंने दे दिया, नहीं दिया, वाज़े है, या चाहूं तो मैं वापस ले सकता हूं, क्योंकि मेरा क्या है? यरहमुकुमुल्लाह है, हिबा जो कर रहा हूं मुकाबिल में एवज चाह रहा हूं, लेकिन अगर एवज नहीं दिया तो मामला बातिल नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? जो ताती है, तमलीक तरफैन है, शबीह हिबे मुअव्वज़ा है। क्यों शबीह हिबे मुअव्वज़ा है? इसलिए कि मैं तमलीक कर रहा हूँ, एता कर रहा हूँ, कस्द क्या है? तमलीक का। उधर से भी तमलीक है, कैसे? कस्द क्या है? तमलीक ऐन है, मगर दोनों के मुकाबिल में कोई चीज नहीं है, क्योंकि दोनों के मुकाबिल में अमल है, कोई शय नहीं है। शायद मैं वाज़े नहीं कर पाया। कह रहे कि इस ताती को, इस एताए तरफैनी में, जिसमें माल मुकाबिले माल नहीं है बल्कि तमलीक माल मुकाबिले तमलीक माल है, इसको हम बै नहीं कहेंगे। हाँ, शबीह हिबे मुअव्वज़ा है। शबीह कह रहे हैं, करीब कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं ऐनन हिबे मुअव्वज़ा है, क्योंकि हिबे मुअव्वज़ा में एक तरफ से हिबा और दूसरी तरफ से मज्जानन होता है।
वाज़ेह है। अगर उसकी मुखालिफत करे तो उसको हक पहुंचता है कि तोड़ दे मामले को, अपनी चीज वापस ले ले या राजी रहे, मज्जानन दिया है तो मज्जानन। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ताती है तमलीक जो एक दूसरे के मुकाबिल में कर रहे हैं, ये मुकाबिल में मैंने माल की तमलीक किया है और आपने मुकाबिल में माल की तमलीक करना है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो दोनों तरफ से खाली है मालियत से। तमलीक मुकाबिल में तमलीक के है ना, लिहाजा दोनों की ताती अगर करें तो दोनों क्या है, माल से खारिज है, जबकि मुआतात में एक तरफ माल होता है, दूसरी तरफ से उसके एवज चाहते हैं। वक़ाल हाज़ा बईदुन अन माल बै व करीबुन मिनल हिबतिल मुअव्वज़ते, ये हिबा मुअव्वज़ा से करीब है। क्यों? लिकौने कुल मिनल मालैने, क्योंकि माल जो एक दूसरे के मुकाबिल में जा रहा है, खालिया अनिल एवज, खालियन अनिल एवज, एवज से खाली है। तमलीक मुकाबिल में तमलीक के है, माल मुकाबिल में माल के नहीं। खूब, फिर इसके ऊपर आप क्या हिबा मुअव्वज़ा का हुक्म नहीं जारी करेंगे? कहने की एक जिहत से माने है, एक जिहत से सही है। वो कैसे? इस पे तवज्जो करें। कहने की लाकिन इजरा ओ हुक्मिल एवजिल हिबतिल मुअव्वज़ति अलैहि मुश्किलुन, लेकिन इस ताती को जो मालियत से दोनों खारिज है, क्योंकि तमलीक मुकाबिल में तमलीक है ना, माल मुकाबिल में माल के नहीं है, लिहाजा हिबा मुअव्वज़ा का हुक्म इसके ऊपर जारी करना मुश्किलुन। क्यों मुश्किलुन? वजह यह है, इज लौ लम युमल्लिक हो अस्सानी होना। हमने क्या कहा? तमलीक के ऐन मुकाबिल में तमलीक के ऐन के है। अब अगर मैंने तमलीक किया, मेरा कस्द क्या है कि वो भी मुझे तमलीक करे, और अगर उसने तमलीक नहीं किया तो जब उसने तमलीक नहीं किया तो मेरी तमलीक वाक़ई नहीं होगी। अगरचे मैंने अपने माल को उसका मालिक बनाया, लेकिन कस्द क्या है कि वो भी तमलीक करे। अगर तमलीक नहीं करेगा तो ये मामला वाकई नहीं हुआ है। हिबा में क्या है कि अगर आपने दिया और उससे चाह रहे कि वो आपको दे और उसने नहीं दिया, तब भी आपका हिबा वाकई हो जाएगा, तब भी आपका हिबा वाकई हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप चाहें तो वापस ले सकते हैं, ना वापस लेना चाहें तो। बड़े दिल वाले हैं, आपने हिबा किया था कि मुकाबिल में वो आपको कोई किताब या कोई चीज देगा, नहीं दिया। खूब, उसकी ज़रूफियत ऐसी नहीं थी, उसने नहीं दिया, उसका ज़हन ऐसा नहीं था कि वो दे देता। आपने जो एता किया है हिबा मुअव्वज़ा में, ये आप चाहें तो मामले को वापस भी ले सकते हैं, ना लेना चाहें तो चलेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि तमलीक मुकाबिल में चूंकि तमलीक है, लिहाजा अगर आपने तमलीक किया और दूसरे वाले ने तमलीक नहीं किया तो आपकी भी तमलीक वाकई नहीं होगी। वाज़ेह है, क्योंकि तमलीक मुकाबिल में तमलीक के थी, उसकी शर्त क्या थी कि वो भी तमलीक करे, और चूंकि आपने तमलीक किया और उसने तमलीक नहीं किया है तो वो पहली वाली तमलीक भी मुहक्कक नहीं हुई। इसलिए कह रहे हैं कि कहाँ चला गया, मुश्किल क्यों? इज़लौ लम युमल्लिक हो अस्सानी, अगर तरफ मुकाबिल भी तमलीक न करे होना इस मसले में, लम यतहक्कक अत-तमलीको मिनल अव्वल, पहली की तरफ से जो तमलीक हुई है वो भी वाक़ई नहीं होगी। वाज़ेह है, क्योंकि इस तमलीक क्या की शर्त क्या थी कि वो भी तमलीक करे, चूंकि उसने तमलीक नहीं किया तो तमलीक के अव्वल भी वाक़ई नहीं हुई। लिअन्नहु, क्योंकि अव्वल ने इन्नमा मल्लकहु, उस सानी शख्स को अपनी माल की मिल्कियत दी थी, बेइज़ाए तमलीक ही, उसकी तमलीक के मुकाबिल में दी थी। फमा लम यतहक्कक तमलीक मिनस्सानी, अगर दूसरे की तरफ से तमलीक वाक़ई नहीं हुई, यानी इसका मुकाबिल जब अदा ही नहीं हुआ, लम यतहक्कक तमल्लुकहु, तो इसके माल की मालिक अव्वल के माल का तमल्लुक दूसरे के लिए वाक़ई ही नहीं होगा। इबारत वाज़ेह है, मैं समझता हूँ। तवज्जो करें एक मरतबा। देखिए यहाँ पे इस मुआतात में एताए तरफ़ैन में नियत क्या है? तमलीक के ऐन मुकाबिल में तमलीक के ऐन के। अब अगर मैंने अपने माल को ज़ैद को तमलीक किया, किस नीयत से, किस कस्द से कि वो भी अपनी घड़ी को मुझे तमलीक करेगा, इस शर्त के साथ मैंने अपनी किताब दी है। अब ये जो मैंने तमलीक कर दी है उसको, किताब को, क्या वो उसका मालिक हो जाएगा?
नहीं। क्यों? इसलिए कि इस तमलीक की शर्त ये कि उधर से भी तमलीक आए। तो अगर दूसरे वाले ने तमलीक नहीं किया है तो पहली वाली तमलीक वाकई ही नहीं होगी, वलो तमलीक किया है, क्योंकि उसका तमल्लुक जब वो कबूल जो कर रहा है, वो कबूल करने की शर्त ये है कि वो भी तमलीक करे। और अगर उसने मेरे अता करने से ले लिया, तमलीक के माल करने की वजह से उसने ले लिया, ये कबूल करना मुअल्लक रहेगा। कब तक मुअल्लक रहेगा? जब तक कि वो भी तमलीक न करे। चूंकि तमलीक मुकाबिल में तमलीक के थी, लिहाजा सानी शख्स अगर तमलीक नहीं कर रहा है तो मेरी भी तमलीक जो अव्वल की है वो भी वाक़ई नहीं होगी। एक मरतबा इबारत और देखिए मुश्किल से के बाद, इज़ लौ लम युमल्लिक हो सानी होना, इस मसले मुआतात एताए तरफ़ैनी में अगर सानी तमलीक न करे, अपनी चीज को मुझे न दे, लम यतहक्कक अत-तमलीकु मिनल अव्वल, मेरी तरफ से जो तमलीक हुई है वो भी मुहक्कक नहीं होगी, वजूद में नहीं आएगी। क्यों नहीं वजूद में आएगी? जबकि मैं दे चुका हूँ, जबकि मैं अपनी किताब मसलन सामने वाले को दे चुका हूं, तो क्यों तमलीक वाक़ई नहीं होगी? उसकी वजह यह है लिअन्नहु, क्योंकि इस अव्वल ने इन्नमा मल्लकहु, अपने माल को तमलीक किया है, हु सानी को, मल्लका में हुआ ज़मीर पलट रही अव्वल की तरफ, पहले ने अपनी मिल्कियत शय की बनाई है, हु सानी को, बेइज़ा तमलीक ही, तमलीक सानी, अपने तमलीक को अपनी मिल्कियत बनाई है उसकी, मैंने अपने माल को उसकी मिल्कियत बनाया, किस मुकाबिल में? कि वो भी तमलीक करे। फमा लम यतहक्कक अत-तमलीकु मिनस सानी, बस जब तक सानी की तरफ से, शख्स से सानी की तरफ से उसने अपने माल को मेरी मिल्कियत में नहीं बनाया, लम यतहक्कक तमल्लुकुहु, उस सानी का मेरे माल का तमल्लुक करना मुहक्कक नहीं होगा। बोला उसने कबूल कर लिया, अपने पास रख लिया, मसला मैंने अपना मोबाइल दूसरे को जैद को देना चाहे, मैं अपने माल के मोबाइल के मिल्कियत बना रहा हूँ, इस शर्त के साथ कि वो भी मेरे मुकाबिल में मिल्कियत बनाएगा। अब अगर उसने मिल्कियत नहीं बनाया, मोबाइल ले लिया है, ये मोबाइल के ऊपर उसका तमल्लुक नहीं होगा, मिल्कियत उसकी नहीं आएगी, वलो मैंने तमलीक किया, क्योंकि मैंने तमलीक मुकाबिल में तमलीक के किया, उसने तमलीक नहीं किया, लिहाजा मेरी भी मिल्कियत वाक़ई नहीं होगी। खूब, इल्ला, मगर एक सूरत इसकी सही हो सकती है। वो कैसे सही हो सकती है? वो इस तरह से कि जिस वक्त मालिक अव्वल तमलीक कर रहा है, तमलीक मुकाबिल में तमलीक के कर रहा है, मगर इस तमलीक में भी उसकी गरज क्या हो कि इसके मुकाबिल में देगा, तमलीक सानी उस माल के ऊपर मेरी मिल्कियत बनाएगा। देखिए, एक मरतबा तमलीक के मुकाबिल में तमलीक है, एक मरतबा तमलीक के मुकाबिल में तमलीक नहीं, बल्कि क्या कहना, इल्ला अयकूना तमलीकल आखर लहू मलहूजन इंदा तमलीकिल अव्वल, मगर ये कि जिस वक्त तमलीक माल को मैं उसकी मिल्कियत बना रहा हूं, उसके मुकाबिल में नीयत ये हो कि ये तमलीक सानी की तमलीक अव्वल के साथ नीयत में है। मैं इसको इस तरह से समझाऊं, देखिए पहले तो मना कर दिया कि तमलीक अव्वल भी, मेरा माल अता करना भी सादिक नहीं आएगा जब तक कि वो भी तमलीक ना करे, ये बात हो गई। मगर इसकी सेहत के ऊपर एक उन्वान, एक जिहत से कह रहे कि सही हो सकता है, अगर नीयत एवज की ना हो, बल्कि गरज सिर्फ ये हो, अंगीजा दिल में ये हो कि मैं तमलीक कर रहा हूं ताकि वो भी तमलीक करे, लेकिन अगर तमलीक ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हिबा मुअव्वज़ा में, हिबा मुअव्वज़ा में क्या है, मैं दे रहा हूं, चाह रहा हूं कि वो अपनी घड़ी मुझे दे दे, मैं अपना मोबाइल उसे दे रहा हूं, चाह ये रहा हूं कि वो मुझे अपनी घड़ी दे दे, मैंने क्या नाम है अपनी मोबाइल उसे दे दी। अब या वो मुझे घड़ी देता है या नहीं देता है, अगर देता है तो फबेहा, मामला हो गया, हिबा मुअव्वज़ा हो गया। अगर नहीं देता है तो इस सूरत में क्या है, मामला क्या बातिल है, मेरा हिबा बातिल हो जाएगा? नहीं, आप बड़े दिल वाले हैं, आपने मोबाइल दे दिया और तरफ मुकाबिल ने घड़ी नहीं दिया, आप उसे वापस ना लेना चाहें, चलेगा, वाज़ेह है ना। यहाँ पे भी यही सूरत बयान कर रहे हैं कि अगर आपने तमलीक किया
मगर मुकाबिल में उससे जो तमलीक है बरबिनाए मुआवजात बेइज़ाए तमलीक ना हो, बल्कि अंगीजा और चाहत ये हो कि वो तमलीक करे, सिर्फ चाहत हो, शर्त के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वाज़ेह हो रही बात या नहीं? जैसे हिबा मुआवजा में मैं तमलीक कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि वो मुझे घड़ी दे, अब अगर उसने घड़ी नहीं दी तो मेरा मोबाइल का हिबा करना बातिल नहीं है। वाज़ेह है? बिल्कुल इसी सूरत को यहाँ पे मद्देनजर रखिए कि तमलीक मैं कर रहा हूँ, तमलीक के मुकाबिल में तमलीक शर्त के तौर पे इस्तेमाल करूं तो मेरी भी तमलीक वाक़ई नहीं होगी अगर उसने नहीं दिया। वाज़ेह है यहाँ तक? लेकिन अगर मैं तमलीक इस नीयत से कर रहा हूँ, शर्त नहीं रख रहा हूँ कि मुआमला मेरा तमलीक करना मुकाबिल में शर्त की कि वो भी तमलीक करे, बल्कि नीयत क्या हो, सिर्फ उसके अंदर अंगीजा पैदा करना, दाई पैदा करना कि मैं तुम्हें तमलीक कर रहा हूं तो तुम भी मुझे तमलीक कर देना। मसला मैं अपनी किताब दे रहा हूं, मुकाबिल मुझसे चाह रहा है कि वो कॉपी दे दे, तो अगर इस नीयत से आपने तमलीक किया, मुकाबिल में उसकी तमलीक को शर्त के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि किस तौर पर, दाई और अंगीजे के तौर पर चाह ये रहा हूं कि जब मैं तमलीक कर रहा हूं तो वो भी तमलीक करे। वाज़ेह हुई बात? तो इस सूरत में मेरा तमलीक करना मामले को पुख्ता कर देगा। तरफ मुकाबिल अगर अंगीजे के तहत देता है तो ठीक, नहीं देता है तब भी ये तमलीक बगैर मुकाबिल के तमलीक के सही हो जाएगा मामला। इस इबारत को निकालिए कहां से, इल्ला अन यकूना तमलीकुल आखिर लहू, लहू की जमीन पलट रही, सानी की तरफ, आखिर से मुराद ये इसका तमलीक करना है। सही मैं जमीन पलटा रहा हूं ना। इल्ला यकून तमलीकुल आखिर लहू मलहूजन इंद तमलीकिल अव्वल अला नहवी दाई, मैं जो दे रहा हूं अपने मोबाइल को तमलीक कर रहा हूं जैद को, और जैद से चाह रहा हूं कि जैद अपनी घड़ी को मुझे तमलीक करे, मगर ये तमलीक करे बेउनवान शर्त मुकाबले के तौर पे ना हो, बल्कि मेरा तमलीक करना इस अंगीजे और इस दाई के साथ हो कि वो भी मुझे अपनी घड़ी दे दे। लल एवज, न एवज के तौर पर, यानी शर्त के तौर पे, एवज जो है मुकाबिल में तमलीक के शर्त के तौर पे ना हो। तो अब अगर उसने नहीं दिया, फर्ज कर लिए मैंने अपने मोबाइल को तमलीक किया, मेरी ख्वाहिश क्या है कि वो भी तमलीक करे अपनी घड़ी को, एवज और शर्त के तौर पे नहीं, बल्कि किस एतबार से, बस दाई के तौर पर चाहत ये है कि वो भी मुझे अपनी घड़ी दे दे, मुझे उसकी घड़ी पसंद आ गई है, मैं अपना मोबाइल तमलीक कर रहा हूँ, वो अपनी घड़ी मुझे तमलीक करे, मगर तमलीक मुकाबिल में एवज के तौर पे नहीं है, बल्कि ये मेरी तमलीक किस तरीके से है, अंगीजा पैदा करने की, वो जो है उसके जहन में आए कि जब इतनी बड़ी चीज मैं दे रहा हूं तो वो भी मुझे अपनी बड़ी चीज की जो है तमलीक करे। तो अगर यहाँ पे लल एवज, एवज के तौर पे नहीं बल्कि दावी के तौर पे है, फला यक़दहु तखल्लुफहु, अब अगर उसने मुखालिफत की, तवज्जो, कैसे हिबा मुअव्वज़ा में अगर मुखालिफत करे तो क्या मेरा हिबा करना बातिल हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे भी इसी तरीके से है कि अगर मेरी तरफ से तमलीक हुई और अंगीजा और दाई ईजाद करना कि वो भी मुझे दे और उसने मुखालिफत की, तो यहाँ पे मामला बातिल नहीं होगा, मेरा तमलीक करना सही होगा, क्योंकि ये तमलीक मुकाबिल तमलीक के नहीं है बल्कि अंगीजा पैदा करने के तौर पर है। इस मामले को क्या कहेंगे? इस मामले को क्या कहेंगे? इस मुआतात को क्या उन्वान देंगे कि जहां पे तमलीक की कस्द से मैंने तमलीक किया है और उधर से उसने मुखालिफत की, मगर मैंने जो तमलीक की थी एवज के तौर पर उससे नहीं चाहा था, शर्त के तौर पे नहीं चाहा था, बल्कि अंगीजे के तौर पे था, तो कहने कि ये हिबा मुअव्वज़ा शबीह हिबा मुअव्वज़ा है, हिबा मुअव्वज़ा नहीं। उसके बाद जनाब शेख अंसारी साहब एक बात कह चुके, अब दो उन्वान और आपके सामने जिक्र कर रहे हैं कि आप इसे मुसालहत भी कह सकते हैं और मुआमले मुस्तकिल्ला भी कह सकते हैं। देखिए कैसे, फल औला अन युकाल, बेहतर ये है कि इस एता, दोबारा मैं वापस पलटूं, फर्ज सानी क्या है, दोनों तरफ से एता हो रहा है और दोनों तरफ से एता के साथ साथ कस्द क्या है, तमलीक का है।
इस कस्द तमलीक की पहली सूरत हमने बयान की, अगर तमलीक के मुकाबिल में तमलीक आई तो मामला सही है वरना बातिल है। क्यों बातिल है? इसलिए कि तमलीक मुकाबिल में तमलीक के थी। उसको सही फिर किया कि अगर तमलीक मुकाबिल में तमलीक हो मगर दाई के साथ हो तो चलेगा, मुखालिफत करे, यानी अगर न दे दूसरा वाला तब भी हिबा मुअव्वज़ा में अगर सामने वाला एवज नहीं दे रहा तो मेरा हिबा जैसे सही है, ऐसे ही तमलीक मुकाबिल में तमलीक के अगर बेउनवाने दाई हो, नहीं दिया तब भी मामला सही है, इसे हिबा मुअव्वज़ा की शबीह करार देंगे। फल औला अन युकाल, लिहाजा तीसरी हालत, तीसरी ही तो कहेंगे, तीसरी सूरत ये है अन्नहा मुसालिहा व तसालुम अला अमरिन मुअय्यन, ये एताए तरफ़ैनी तमलीक की नीयत के साथ ये एक अम्र मुअय्यन के ऊपर तसालुम है, मुसालिहत है, और मुआवजा मुस्तकिल्ला या एक मुआवज़े मुस्तकिल्ला है, ना इसको बय का उन्वान दीजिए ना इसको मुसालिहत का उन्वान दीजिए। तवज्जो रहे, क्या क्या कहा? पहले ये कहा कि ये बय नहीं है, दोबारा सुनिए, बय नहीं है। क्यों नहीं बय है? इसलिए कि तमलीक मुकाबिले तमलीक है, माल मुकाबिले माल नहीं है। फिर उसके बाद कहा कि ये हिबा मुअव्वज़ा से करीब है। क्यों हिबा मुअव्वज़ा से करीब है? इसलिए कि ऐन हिबा मुअव्वज़ा नहीं है, करीब है। तमलीक मुकाबिल में तमलीक के है, शर्त अगर पूरी होती है तब तो मामला सही है वरना फासिद है। मगर इस फासिद को भी बचाया, तमलीक मुकाबिल में तमलीक इस जेहत से हो कि हम दाई ईजाद कर रहे हैं कि वो दे दे, ना दे तो कोई बात नहीं है, तब ये सही हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि अगर आप इस एताए तरफ़ैनी का एक उन्वान अलग दें और वो है मुसालिहत का। मुसालिहत यानी क्या? एक अम्र मुअय्यन के ऊपर, मैं आपको अपनी मोबाइल दे रहा हूं, तमलीक कर रहा हूं, और आप अपनी घड़ी मुझे तमलीक करें। इस तमलीक मुकाबिले तमलीक का उन्वान क्या है? एक तसालुम और इत्तेफाक अम्र मुअय्यन के ऊपर, माल नहीं है, माल के उन्वान है। माल का उन्वान क्या है? तमलीक घड़ी, तमलीक मोबाइल। इस मोबाइल और घड़ी के तमलीक के मुकाबिल में तमलीक का उन्वान क्या है? मुसालिहत, क्योंकि तसालुम कर रहे हैं, इत्तेफाक कर रहे हैं एक अम्र मुअय्यन के ऊपर। आखिरी बात, और हिबत, और क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? और मुआवजा मुस्तकिल्ला, ये एक मुस्तकिल मुआवजा, ना तो बय सादिक आ रहा है क्योंकि मुबादले माल बेमाल नहीं है, ना इसे आप मुसालिहत कहें। क्यों मुसालिहत ना कहें? हिबा मुस्तकिल्ला, मुआवजे मुस्तकिल्ला, मुआवजे मुस्तकिल्ला कहें, क्योंकि क्या नाम है, माल बय नहीं है क्योंकि माल मुकाबिल में माल के नहीं है, तमलीक मुकाबिले तमलीक है, लिहाजा उसे हिबा मुअव्वज़ा कहा। एक जिहत से साबित हुआ, एक जिहत से फासिद हुआ। तीसरी सूरत क्या कि मुसालमत, तसालुम है, तसालु है अम्र मुअय्यन के ऊपर, तमलीक मुकाबिले तमलीक का एक उन्वान क्या है? मुसालिहा। चौथी सूरत क्या कहा? मुस्तकिल मुआमिला है, इसके ऊपर न सुलह का सादिक आती है, न बय सादिक आता है, ना और उन्वान कोई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हालांकि मैं सोचा था ये तीसरी